Welcome everyone to Just in Guts, a platform with no filters, no fluffs. Just bold, brainy discussions by students for students. And for the very first discussion of Just in Guts, we have with us Rituj Patel, a passionate UPSC aspirant, a postgraduate student who's got a smart mind and much sharper opinions. Welcome, Rituj. Thank you. Thank you for having me. It was a I was great, looking for this chat for a long time. yes, it was a long overdue chat we decided to have. For today's discussion, we are going to discuss on Iran-Israel's conflict from proxies to real wars and a love triangle with USA that the world didn't expect. For the today's discussion, we are going to deal with the history of Iran-Israel's conflict, the geographical confrontation in the region, the aims of different stakeholders in this conflict, the impact on India, and the way forward. We are going to start with history. If I fall out on any detail, please, Rituj, please do fill me in. For our Sure. viewers, I'm going to brief. I'm going to brief you all with a brief history of the conflict. Israel was became a state in 1948. It had cordial relationships with Iran until 1979. In 1979, Iran underwent a Islamic revolution, and the Shah regime was taken out, and Ayatollah Khamenei came into power. Before 1979, Iran was a pro US regime, and after 1979, it became anti West and pro Palestine, which led to destruction in the relationship between the two nations. In 2000, after 2000s, after 2000, the two nations also became apart on the subject of nuclear technology. Israel was not feeling safe of Iran developing its nuclear technology, whether it was even just for its civil use. In 2015, Iran entered into an agreement with the P5+1, that was Joint Comprehensive Action Plan, which prohibited it to expand its nuclear power. In 2018, Trump came into power and exited from this agreement. And after that, in 2021, we have seen number of cyber attacks. And in 2025, the condition has led to a full-blown war. Until now, Iran and Israel were engaged in proxy wars via Hamas, via Houthis, via Hezbollah. But now it has all come to the front foot, and both the countries are fighting a real war. So the first question of the discussion today is that why now? After so much fighting from the Houthis, Hezbollah, Hamas, why now Israel has taken it taken this step to attack Iran on the front foot? I think for me there are a couple reasons. The first is maybe that Israel may have fed up with all the proxies that Iran is forcing on its border for the Houthis and the Hamas, which has for the Israel-Hamas wars are for long part of history. Every couple of years the Hamas attacks Israel. So then Iran is indirectly funding the Hamas. Also, a couple of months ago, Iran made very big demands regarding its nuclear developments, nuclear projects. It may also be possible that America may have pushed Israel for to take an decisive actions, as America have always been against Iran to have nuclear weapons. So I think it was a multi-level problem. They were fed up with the proxies of Iran. Also, maybe America may have pushed them. What do you think was the main reason for this? I believe Iran not cooperating with the International Energy Agency was the immediate cause of this action. But many actions have led to this particular situation. First, being that now is the very right time for Israel because they have dealt with Hamas, they have dealt with Hezbollah, they have dealt with Houthis. Even the celebrated president of Iran died last year. Many say it was an assassination, many say it was accident. But Israel has been keeping in check, has been outsiding every threat that it had till now. Second point for this being a great opportunity for Israel is that Trump is in position of the president.
He will definitely help Israel. Israel is a pampered child of US, and Israel is going to take full blown benefit of this. That is why it has taken it into account now. No enemies, no short enemies, just looking at the main enemy. The So yes, please yes, yes. continue. No, no, you continue. So I was just adding that we may see that if Iran gets a new nuclear weapons, Israel may see it as an existential danger for itself, Yes, definitely an existential threat. existent threat, existential crisis. Israel might see it, but a preemptive attack does not does not is not I would not say it does not justify a preemptive attack on Iran like this, a full blown attack, just on the basis of maybe they have. It's not confirmed. It just maybe they have been fighting just on the basis of maybe they have. Has not confirmed that they will be ready with a nuclear weapon in 2 3 days. It was just maybe, and maybe was funded by USA because US has its own agendas, its own aim behind Iran. Iran is a very is at a very tactical geographical location. It is connected to Asia via Pakistan, Iran. It has cordial relationship with India. It is connected to Europe via Caspian Sea. It is a very tactical position. And if Iran becomes a nuclear power, it would be not be good for USA. That's why, that is why it is happening. The maybe has been pushed to yes, they have. No confirmation, just maybe. Don't you think that's true? Yeah, yeah, that's definitely true. That's definitely true. I think Iran has been cooperating since a long time. It has been saying in 2003, it said we want to peacefully forward this nuclear technology. We don't want to engage in violent nuclear technology. But still, Israel Israel felt insecure. US still pushed Israel's insecurity. And because of this insecurity, today we are seeing what we are seeing in the form of a big blown war. But we can't term it as a big blown war. Only Iran had serious damages. Both Israel and America bombed it. And now I think Iran is in no condition to retaliate. As Iran has just its soul, it has got no alliance which they will back Iran for its war. No, I defy this point of yours that Iran don't have allies. I think this, like Trump has called this a 12-day war. I think this 12-day war between Iran and Israel, backed by USA, we should definitely say backed by USA, has made clear to the world that there are two fronts in the world. And these two fronts definitely look like the fronts we had in World War II. And the development for these two fronts is also similar to World War II. Iran Iran was backed by Russia, China, not directly but indirectly. Definitely North Korea. This Yes, is that's what I was trying to say that no other nation is coming directly to help Iran. And that's what I was trying to say that no nation is coming for direct help. As America came for Israel, they sent their bomber planes. No other nation will send their defense equipments, their troops in Iran's aid. Iran is all alone. They might get some financial indirect aid from Russia, from China, but no nation will directly came forward to help Iran. Iran has to do all on its own. I So believe I in during World War there may be a polar world that one nation if in problem the other will come. But now I think it's a bipolar world. Only America is at the top and all are just trying to reach there. So I think Iran is isolated in a way. I believe I believe that Iran might have not got support directly from any nation, but when the war started on 13 or 12 June,
with Israel attacking Iran, US and Iran also retaliating with firing its missile on Israel. Trump said that we are giving you 14 days. Trump was buying time for Israel and for itself to see which nation comes forward and supports Iran. But China being a businessman, why would it take the risk? Until and unless the Chabahar port is on, until and unless uh, until and unless Pakistan, Afghanistan does not join the Pakistan China Pakistan corridor, it's fine with it. It's fine with it. That's why it didn't do anything. Russia also, Putin also gave statements that peace should be prevailed. Peace should be prevailed. Trump was just waiting for any direct involvement of any other nation. That's why it was buying time. It was buying time for Israel to make up. It was buying time for Israel to put its defense back up. I believe that. So the next question is ki, why has the media, the West media, the Middle East media has portrayed Israel as a responsible holder in this war and Iran as an irresponsible holder? Why? मेरे हिसाब से तो द ओल्ड सेइंग इन द बेस्ट एट डेमो रुक जाओ पहले आ रही है आवाज हाँ, अब आ रही है आवाज। बाकी कोई डिस्टरबेंस तो नहीं है कूलर की आवाज या पंखे की नहीं नहीं आवाज नहीं नहीं। हाँ भाई बहुत मुश्किल काम है ना ये वीडियो बनाना हम्म। वो भी ऑनलाइन ऐसा अब आ रही है आवाज, जवाब तो दे कि ऐसा क्यों हो रहा है कि सब मीडिया पोर्ट्रे ऐसा कर रही है कि इजराइल इज राइट, उसका राइटफुल। मैं याद करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं क्या कहने वाला था एक ओल्ड सेइंग है जो कह रहा था। हाँ यार भाई प्रोवर्ब था कि डेमोक्रेसी इज ग्रेटर ऐसा कुछ मैंने पढ़ा था अच्छा सा अब भूल गया मैं कोई बात नहीं। याद करने दो पता नहीं चलो छोड़ो सेइंग होगी कुछ फिर आगे। हाँ तो कट गई हेलो आवाज। अब आई। हेलो आ गई आ गई। भाई बोलो बोलो कट बोलो। क्यों रही कोई बात नहीं, तू बोल ना। At the best has always portrayed that democracy is a better form of government than the theocracies, dictatorship, of any other form of government. So I think that Israel being a democracy, so they always try to portray that as Israel is a democracy, so it is a responsible state. The whole nation is responsible. Whereas Iran, a theocracy, a religious nation, so they don't think that Iran can act as a responsible nation or it can be trusted with dangerous weapons. I think this might be one motive of presenting Israel as a responsible nation as it is a democracy. आपको क्या लगता है क्या रीजन है मुझे ऐसा लगता है कि जो ये पूरा पोर्ट्रेयल है ना, इट्स ऑन द बेसिस ऑफ लाइक्स ऑफ यूएसए। यूएसए डजंट लाइक ईरान। यूएसए डजंट वांट इट to practice and to go forward with the nuclear weapon development. Hence, it is wrong. The stats, what they say, the stat that I have with me is 1948 में Israel established हुआ and that was established to neutralize the Arab world on the side of USA. उसके बाद 1949 में US created NATO. 1955 में जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज थी उस टाइम पे, इंडिया, यूगोस्लाविया, they created NAM. We are not supporting anyone and we believe in nuclear disarmament. 1961 में रशिया ने दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर टेस्ट कर दिया नॉर्थ पोल में, और आज तक उससे बड़ा कोई न्यूक्लियर टेस्ट हुआ नहीं है। इट वॉज लाइक अ शो डाउन कि सी यूएसए, यू कैन डू दिस, वी कैन डू दिस बेटर। और उसके बाद से न्यूक्लियर वेपन्स की रेस एकदम पुश हो गई, एकदम उसको फास्ट पेस मिल गया। 1963 में पीटीबीटी साइन हुई, पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी, जिसमें बोला कि यू आर नॉट अलाउड टू डू एनी टेस्ट, न्यूक्लियर टेस्ट अंडर द वाटर, इन द एटमॉस्फेयर, आउटर स्पेस। इंडिया ने इसको साइन किया
1962, क्योंकि 1962 में हमने चाइना के साथ वॉर लड़ी थी, अभी हम किसी उस पोजीशन में नहीं थे कि हम इसको रेजिस्ट कर सके। ठीक है। तो अभी तक सब कुछ बढ़िया बढ़िया चल रहा है, ईरान ने भी सब कुछ साइन कर दिया। एंड फिर 1970 में एनपीटी हुआ, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, जिसमें बोला कि अब हम न्यूक्लियर डिसमिनेशन बढ़ावा नहीं देंगे और जो हम न्यूक्लियर वॉर के प्रिवेंट भी करेंगे। ठीक है। 1971 में लेकिन इंडिया पाकिस्तान की वॉर हुई, तो इन्होंने यूएस ने अपना सेवेंथ फ्लीट बे ऑफ बंगाल में डिप्लॉय कर दिया और बोला कि हम तुम पे अटैक कर देंगे, न्यूक्लियर अटैक। तो 1974 में इंडिया जो कि पॉवर्टी से जूझ रहा था, दे वर फोर्स्ड कि वो ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा प्रैक्टिस करें और एक न्यूक्लियर पावर बने। वी डिडंट वांटेड, वी वर कंपेल्ड। ठीक है। तो इंडिया के ऊपर भी फिर उन्होंने बोला यूएस ने कि हाँ आप पे सैंक्शन कर देंगे, हम पे आप पे ये कर देंगे, या आप पे ये हो जाएगा, आप पे वो हो जाएगा। ठीक है। फिर 1955 में, अभी तक ईरान बढ़िया चल रहा है, 1979 अब आता है। ठीक है। ईरान इजराइल भाई भाई, ईरान ईरान यूएस गुड टर्म्स, नथिंग। अब 1979 में रिजीम चेंज होती है। अब एकदम से रिजीम चेंज होके वो बन गए प्रो पैलेस्टीनियन, एंटी वेस्ट। फिर इनका यहाँ से खराब होने लग गया है। ठीक है। बट स्टिल अभी भी ईरान का कोई कहीं से भी कहीं तक न्यूक्लियर पावर बनने का कुछ कहीं से भी कुछ नहीं आया। 1995 में ये वापस से एनपीटी रिवाइज करते हैं, 25 ईयर रिव्यू होता है। 190 कंट्रीज उस टाइम पे होती हैं, 173 उसमें से नॉन न्यूक्लियर कंट्रीज थी और 5 न्यूक्लियर कंट्रीज जिन्होंने साइन किया। जो 12 रिमेनिंग कंट्रीज थी जिन्होंने साइन नहीं किया, उसमें से नॉन 9 तो कंट्रीज ऐसी थी जिनका इंपॉर्टेंस था ही नहीं, नेपाल भूटान, कि ये साइन करें चाहे ना करें। लेकिन जो बची हुई 3 कंट्रीज थी, इंडिया, पाकिस्तान एंड इसराइल, ये थे थ्रेशोल्ड नेशन, कि अभी इनके पास ये एक बड़ी न्यूक्लियर पावर बन सकते हैं। इन्होंने साइन नहीं किया। पाकिस्तान से किसी ने क्वेश्चन नहीं पूछा, इसराइल से किसी ने क्वेश्चन नहीं पूछा, पर इंडिया वाज आस्क्ड, बहुत ज्यादा, आज तक इंडिया इज आस्क्ड कि व्हाई डिड यू टेक दैट स्टेप। आपको हम इतने सारे आपको हम इतने सारे अपॉर्चुनिटीज दे रहे थे, हम आपको कह रहे थे कि आईईए के थ्रू आपको हम सब कुछ प्रोवाइड करेंगे जो भी आपको चाहिए, सेफर टेक्नोलॉजी फॉर पावर जनरेशन। ठीक है। एनएसजी जो है न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, उसके थ्रू आपको न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी देंगे, सब कुछ देंगे। बस आपको क्या करना पड़ेगा, आप ये ट्रीटी साइन करो। बस आपको क्या कहते हैं, अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम ट्रांसपेरेंट रखने पड़ेंगे, किसको, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी को। इंडिया ने साइन नहीं किया तो इंडिया बुरा बन गया। ईरान को भी ये साइन करने के बाद याद आया, समझ में आया कि ओ माय गॉड, इसराइल तो हमारे बगल का देश है, इसने तो साइन नहीं करी। उसको लगा कि भाई हम तो गए। तो उसने भी क्या किया, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा चालू किया। तो वो बुरा बन गया बिकॉज उसने यूएस के साथ एक यूएस स्पॉन्सर्ड बनाया हुआ एक एग्रीमेंट साइन करा। एंड देन इट रियलाइज्ड कि हमारे बगल का देश है, उससे तो कोई सवाल नहीं है, वो कुछ भी करे, इट्स नॉट ट्रांसपेरेंट, पर हमारा सब कुछ ट्रांसपेरेंट है। तो इसलिए वो बुरा बन गया। और ये जो थियोक्रेसी वाली जो आपने बात करी कि बिकॉज डेमोक्रेसी इज कंसिडर्ड एज अ बेटर गवर्नमेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देन थियोक्रेसी, इसलिए उसको ऐसा माना जा रहा है। दे आर थिंकिंग कि एक रिलीजियस लीडर के हाथ में अगर कोई इतना बड़ा हैवी डिस्ट्रक्टिव न्यूक्लियर वेपन आ जाएगा, if that would be harmful, then it is in the hands of Israel. But I don't think that makes any difference. Iran was peacefully, there was not, that was not peaceful, they were engaged in proxy wars, but Israel attacked first on ना Iran. तो हम कह सकते हैं कि अमेरिका पुश करता है बाकी नेशंस को न्यूक्लियर वेपन्स के लिए। Yes, it अगर is a अमेरिका vicious ने cycle. नागासाकी हिरोशिमा नहीं किया होता तो रशिया इतना स्पीड से No, डेवलप नहीं no, करता। no. अगर अमेरिका ने सेवंथ फ्लीट नहीं भेजा होता तो इंडिया भी ये डेवलप नहीं नहीं करता, करता। नहीं, यस। अब आ गई आवाज। कहाँ पे कटी थी? अरे तो वो कि इंडिया नहीं करता। हाँ, इंडिया भी नहीं करता। अगर अमेरिका अभी भी ईरान को ऐसे पुश नहीं करेगा तो ईरान भी ऐसे नहीं करता। यस, लेकिन डेफिनेटली। अमेरिका की ऐसी बॉर्डनिंग्स, इसराइल के पास न्यूक्लियर बम होने, सब ईरान को पुश कर रहे हैं। यस, तो अमेरिका इज जस्ट सिटिंग बिहाइंड आइडियली एंड पुशिंग ऑल अदर नेशन फॉर आर्म्स रेस इनडायरेक्टली। yes, definitely. North Korea has opted out from NPT. कि we don't want to be part of this. No, how is North Korea being projected in the world via media, via the West media? That's a bad nation. It's a threat to the world peace. That's how it is being projected.
That is how it is being projected. USA, Trump, what is Trump doing? What is Trump doing becoming the mediator here is I want the Nobel Peace Prize. I am the person who preaches peace. I am becoming a mediator. I am intervening because I want world to be at peace. I am declaring the ceasefire. It is what he did during Pahalgam attack. He said, I mediated. He invited Asim Munir for dinner and also PM Modi so that it might look that he is the mediator, but actually it wasn't. In the G7 meeting, also Modi said, You didn't mediate it, America didn't mediate anything. It was us only. They called us for the ceasefire. So he just want to be projected कि I am the peacemaker. It's his competition with Barack Obama. That's what He it just want is. he just want all the credit for everything in the world. कहीं Yes. पे कुछ भी वो तो ट्रम्प बॉन्ड की मैंने ही किया है. Yes, he कहीं पे promised पीस that. हो और हो हर जगह उसे ही क्रेडिट चाहिए. Yes. मतलब अगर स्टैट्स देखें तो मतलब मैंने थोड़े स्टैट्स लिखे हैं जस्ट टू बी विद फैक्ट्स. 1990 की वॉर हुई. इराक ने अटैक किया कुवैत पे. यूएस कूद गया नेटो के मेंबर्स लेके इराक पे. ठीक है. ऐसा ही हुआ. मतलब वो यही तो करते हैं. रशिया मतलब अगर रशिया अटैक नहीं करता यूक्रेन पे, दैट्स व्हाट पुतिन इज सेइंग टू हिज पीपल कि अगर इफ आई हैडंट गॉन टू द वॉर तो क्रेमलिन तक नेटो आ जाता. Putin's side is he's trying to establish nationality among his people. Ki we are doing it to protect the sovereignty. We are doing this to protect our nation. Russia can also finish the war with Ukraine however they like, very fast. But they are pushing it because USA pushed NATO to its borders, literally immediate borders. That's why the USA always try to be the mediator. I am the god, I am the peacemaker. But what actually they are doing is they deteriorate the condition even more. They make the what what is worse, it makes it worst. खराब से और बदतर कर देता है उसको. NATO is trying आवाज नहीं. नेटो नेशन है जो रशिया के बॉर्डर पे है, एस्टोनिया है, पोलैंड है, एक दो और है. बट हम्म. यूक्रेन सबसे बड़ा नेशन होता क्योंकि यूक्रेन वेरी लार्ज पार्ट ऑफ यूक्रेन शेयर्स बॉर्डर विद रशिया एंड इट इज टू क्लोज टू मॉस्को. इट Yes, वाज अ बिग थ्रेट फॉर रशिया. yes. Same way, why is US funding Pakistan? Because it has a very long border with Iran. अगर कहीं से भी हमें military action लेना है, full proof, तो we can take that from Pakistan only. Nobody, nowhere else. So it's like we are in the America's world. Yes, Everything is happening, America is behind it. yes. According to America's administration's will, likes, where they will be put on the best pedestal. If they don't like the government, government change. If they don't like the regime, regime change. That's how it is going. And Pakistan, for the matter of say, Pakistan has just become a buffer state for USA since the time of Afghanistan when it needed a buffer state for Afghanistan and when it needs a buffer state for Iran as well. Why was why did IMF sanction the leftover money 1.4 billion money to Pakistan? Why? Because they needed, they like, do this favor, we'll give you money. That's why. And I China, think it's high time that another nation grow to counter America. no, another nation, not just one nation. I think every nation should see on for what benefits their nation. There's a very good saying that I just heard today that there are no permanent enemies, no permanent allies, only national interest. And it is very commendable for US that it has been doing this since World War One. It has been seeing its own interest, national interest in terms of money, growth. It has been supplying just it has been supplying weapons and weapons and weapons and growing its economy.
And India on this part, India is neutral at this point because India needs both. India has great ties with Israel in terms of defense. In terms of Iran, we have great ties with them in terms of transportation. We are in a long term agreement for Chabal port so that we can go to Central Asia and come back easily with small cost. तो इंडिया के काफ़ी सारे आईएमएक है, इंडिया मिडल ईस्ट कॉरिडोर जो G20 में मोदी जी ने लाया था। इंडिया का INSTC भी है, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, जिसमें 13 मेंबर्स हैं, जो ईरान से होते हुए जाता है 6 बार, मुंबई से 6 बार पोर्ट से, फिर तेहरान से, फिर बाकू से, देन इट गोज टू मॉस्को। अगर ईरान और इसराइल की लड़ाई चलती रहती है एंड ऐसा आ जाता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज हमें रोकना पड़ता है कहाँ पर। और ईरान पूरा डिस्ट्रक्ट हो जाता है, तो इंडिया पे तो डायरेक्ट इम्पैक्ट है। हम इंडिया की इकोनॉमी डायरेक्ट इन्फ्लुएंस होगी ना, जैसे स्ट्रेट ऑफ जो हॉर्मूज है, या जो बबल मंदेब है जहाँ पे उसकी जो हूतीस हैं, तो इन सब से इंडिया की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगी। फिर इंडिया को पूरा ऐसे चक्कर लगा के जाना पड़ेगा केप ऑफ गुड होप के यहाँ से। ऑल्दो स्विस कैनाल है, फिर भी है स्विस कैनाल, बट स्टिल डिसरप्ट हो जाएगा। बट है ना, अभी इंडिया की जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है उनकी प्राइस बहुत बढ़ते जा रही है मतलब हर जगह। शॉर्ट टर्म में अगर हम देखें ऑयल के उसमें, तो शॉर्ट टर्म में ऑयल में भी इतना स्पाइक नहीं आएगा, बट इन लॉन्ग टर्म, क्योंकि हमारा 85% इम्पोर्ट होता है, 60% हमारा गल्फ से होता है, 25% हमारा रशिया से होता है। रशिया यूक्रेन वॉर से पूरा यूरोप वगैरह ने रशिया से लेना छोड़ दिया, तो इंडिया ने बोला आप हमें बेचो, हम बेचते हैं। तो इंडिया का अब ऑयल एक्सपोर्ट बढ़ गया है, तो उस वजह से हमारे ऑयल डिप्लोमेसी की वजह से इंडिया पे ऑयल राइज एकदम से नहीं होगा, होएगा बट एकदम से नहीं होएगा। बाकी एक्सपोर्ट्स हमारे थोड़े इम्पैक्ट कम हो पड़ेगा लेकिन। जाएंगे, इम्पैक्ट डेफिनेटली पड़ेगा। जहाँ हम पूरा मिडिल ईस्ट से हम यूरोप जा रहे थे इजीली एट लो कॉस्ट, अब हमें ज़्यादा पैसा लगाना पड़ेगा। उतना तो होगा ही। अब यूएसए ने सीज फायर डिक्लेयर कर दी है, इट हैज़ डिक्लेयर्ड अ सीज फायर एंड इट डिक्लेयर्ड लाइक बहुत बड़ी एक जंग हुई है, 12 डे वॉर। बट अभी बट इसराइल, अभी सीज फायर डिक्लेयर हुई, अभी ईरान मुझे लग रहा है रिटेलिएट करेगा। एंड आई थिंक करना भी चाहिए, इट्स हाई टाइम। इंटरनेशनल लॉ में भी उसके पास रीजन है। यस, ऐसे ही मैं पढ़ रहा था, इंटरनेशनल लॉ सेज दैट कि आप इफ प्रीएम्प्टिव नहीं कर एनी सकते। इज अलाउड फॉर अ रिटेलिएशन इन केस ऑफ प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स। तो ईरान के डेफिनेटली पास पूरा लीगल लॉ है कि वो अटैक कर सके। आप और प्रीएम्प्टिव मुझे स्ट्राइक लग कर रहा ही है नहीं वो सकते थे। करेगा। यस, आप प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कर ही नहीं सकते थे। अगर कोई और नेशन प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करता, यूएस उसकी छाती पे चढ़ के यूएन में बोलता कि हाउ डिड यू डू दिस, दिस इज नॉट द लॉ, यू आर नॉट अलाउड टू डू दिस। बट दिस टाइम यूएस वांटेड, तो इसराइल ने करी प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ मे बी। ईरान की इसमें पूरी एक गलती थी कि वो आईईए के इंस्पेक्टर से अच्छे से कोऑपरेट नहीं किया, बस। अभी तक तो सब कुछ ईरान पीस। की एक गलती थी कि उसने बोल दिया वो न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर डेवलप रहा है। करेगा। हम्म, उसे कर लेना था, फिर बोलना था जी, कि मेरे पास बिल्कुल न्यूक्लियर न्यूक्लियर वेपन वेपन है, है। यही गलती थी बस। अभी सोमालिया में इंटरवेंशन किया यूएसए ने बहुत पहले, ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट पे, कि उनके वहाँ हंगर है, वहाँ पे ऐसा हो रहा है, तो वी शुड गो इन। तब उस पर कोई, उसके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता, बिकॉज दैट वाज द बेसिस ऑफ ह्यूमैनिटेरियन एक्शन। यहाँ पे आप ईरान पे अटैक कर रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ मे बी, नॉट सेइंग कि ईरान इज राइट और इसराइल इज राइट। इंडिया के लिए दोनों ही बहुत ही ज़्यादा टैक्टिकली इंपॉर्टेंट है, इसराइल हमारे डिफेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, ईरान हमारे एक्सपोर्ट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। इंडिया कोई स्टैंड नहीं ले सकता है इस टाइम पे। इंडिया बिल्कुल ऐसा बन गया है सॉफ्ट पावर कि वी कांट टेक, बिकॉज वी कांट टेक एनी स्टैंड। हम अभी बनना चाहते हैं एक सुपर पावर, बनना चाहते हैं हम, अगर हम ले लेंगे एक वॉर में अपना को धकेल देंगे, तो फिर कैसे बनेंगे? वही बात लेकिन है। हम साइड नहीं लेंगे तो फिर बाकी नेशन हमारा साइड नहीं लेंगे ना। जैसे अब ईरान बोले कि हमारी हेल्प करो, अगर अब हम उसे मना भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा पूरा जो मिडल ईस्ट का ट्रेड है वो ईरान के ही थ्रू हो रहा है। तो हम ईरान को हेल्प के लिए मना भी नहीं कर सकते, ना हम इसराइल को हेल्प के लिए मना कर सकते हैं, क्योंकि हमारा बहुत डिफेंस इक्विपमेंट इसराइल से आ रहा है। तो इंडिया बहुत बड़े डिलेमा में है। इंडिया डिलेमा तो में नहीं है, इंडिया इस डिलेमा में डिलेमा नहीं। का सॉल्यूशन क्या होना चाहिए?
स्टेइंग न्यूट्रल विल हेल्प इंडिया। वैसे भी इंडिया स्टेइंग न्यूट्रल में बहुत ही पावरफुल हो गया है। आई थिंक उसका गेम न्यूट्रल रहने का बहुत स्ट्रांग हो गया है, क्योंकि जब रशिया यूक्रेन की वॉर हो रही थी तभी भी यूरोपियन यूनियन में जब मिस्टर जयशंकर की इंटरव्यू था, तो वहाँ पे भी उनसे पूछा गया था कि डोंट यू फील बैड दैट यू आर टेकिंग ऑयल फ्रॉम यू रशिया। तो जयशंकर ने बहुत ही बोल्डली रिप्लाई दिया था कि जो आप एक दिन में ऑयल ले रहे हैं वो हमारा एक महीने का ऑयल होता है। आप पहले अपने आप को देखिए, देन सी अस। है ना? जस्ट बिकॉज वी आर नॉट टेकिंग साइड, इसका मतलब ये नहीं है कि वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग। आप साइड लेते हुए भी आप अपना काम तो सब कुछ कर रहे हो ना। लेकिन इफ वी डू इट तो इट्स लाइक यू पॉइंटिंग फिंगर्स एट अस, बट यू पॉइंट फिंगर एट अस लाइक दिस, द फोर फिंगर्स पॉइंट एट यू। द थिंग इज दैट। तो वो भी बात है कि इंडिया को न्यूट्रल ही रहना चाहिए। और न्यूट्रल रह के इंडिया को अपने लिए, जैसे यूएस, जब तक यूएस तो खुद नहीं आई थी वर्ल्ड वॉर तक, यूएस वाज नॉट पार्टिसिपेंट, इट वाज जस्ट इनडायरेक्टली इन्वॉल्व्ड। वो अपनी इकोनॉमी बढ़ा रहा था भाई, वेपन सब कुछ सब सप्लाई करके। तो वैसे ही इंडिया को एक मिडिल ग्राउंड निकालना चाहिए, जिससे वो अपने अपने नेशनल इंटरेस्ट में देखकर एक न्यूट्रल अप्रोच रखे, कि ना वो इधर से पिसे ना वो उधर से पिसे। आवाज कट गई। हेलो। आ गई, आ गई। हेलो। आ गई, आवाज आ गई। आ गई। भाई मैं भूल जाता हूँ मैं क्या बोलने वाला था। हाँ, याद आ गया। जो जो अमेरिका है, अमेरिका का ट्रेड हमेशा मिलिट्री बैक्ड रहता है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से जहां जहां पे भी अमेरिका ने, जी। जहां जहां पे अमेरिकन ट्रेड पहुंचा वहां वहां पे अमेरिकन मिलिट्री पहुंच गई। फ्रॉम आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 जहां पे भी अमेरिकन का एक्सपोर्ट सेंटर है वहां पे अमेरिकन बेस मिलिट्री बेस जरूर है। इट हैज ऑलवेज बैक्ड इट्स एक्सपोर्ट, इट्स ट्रेड बाय इट्स मिलिट्री। वो भी बाकी नेशंस के लिए एक तरह से बहुत बड़ा थ्रेट है। जैसे हम ईरान की बात करें तो पूरा ईरान सराउंडेड है अमेरिकन बेसिस से। यस। इन पाकिस्तान, इन इसराइल, इट्स सराउंडेड बाय ऑल थ्री साइड्स। तो अमेरिका इज यूजिंग वेरी, बहुत ही अच्छी मतलब डिप्लोमेसी यूज कर रहा है कि कहीं डर्टी पे भी उसे डिप्लोमेसी। अपने, हाँ, तो डर्टी। थ्रेट नहीं आने देता है अपने ट्रेड रूट्स के ऊपर कहीं पे भी। तो हमें लगता है अभी इंडिया को, चाइना को ऐसे अमेरिका से कुछ सीखना चाहिए। चाइना तो इज इसमें डेफिनेटली लर्निंग, आई वुड से। चाइना ईरान चाइना का प्रॉक्सी है वेस्ट में, क्योंकि उसने वहाँ अपने कम से कम 400 बिलियन इन्वेस्ट करे हैं फॉर 20 ईयर्स। मतलब एक इनडायरेक्ट, एक ये जो वॉर हो रही है ईरान इसराइल की, ये एक इनडायरेक्ट वॉर है चाइना और यूएस की। डेफिनेटली। हाँ, वो वॉर इसलिए इनडायरेक्ट है यूएस चाइना की, इसराइल ईरान की, क्योंकि अगर ईरान में रिजीम चेंज हो जाती है, पहले तो ईरान में डिफेंस का अलग सिस्टम है। ईरान में वहाँ पे आईआरजीसी अलग है, जो कि उसके रेवोल्यूशन को जिंदा रखने का मोर्चा जिस पे है, और उनकी आर्मी अलग है। अगर रिजीम चेंज होती है तो आयतुल्ला या आईआरजीसी लेके, जिसके पास सारी मिसाइल है सब कुछ है, उसको लेके अलग हो जाएगा, और वहाँ पे सिविल वॉर चालू हो जाएगी ईरान में। और जब सिविल वॉर चालू हो जाएगी तो फिर वहाँ पे क्या क्या ट्रेड होएगा, क्या इकोनॉमी बढ़ेगी, सब कुछ एक डिस उसमें चला जाएगा, एक पॉट होल में चला जाएगा। तो फिर अफगानिस्तान जो ईरान का बहुत ही स्ट्रॉन्ग एलाय है, उसके भी चांसेस फॉर ट्रेड चले जाएंगे, क्योंकि ईरान के थ्रू वो कैस्पियन सी के थ्रू वो वहां जा सकता था जहाँ पे से चल रहा है सब कुछ। पर वो फिर नहीं जा पाएगा, तो वो सी पैक ज्वाइन कर लेगा, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। है ना? तो यूएस ये भी नहीं चाहता कि अफगानिस्तान सी पैक ज्वाइन कर ले और चाइना और स्ट्रांग हो जाए। दैट वुड ऑल्सो, दैट इज वाई आई थिंक ये मीडिएशन जो इतना स्ट्रांग मीडिएशन हो रहा है, कि हम देखो आपको मारना चाहते हैं बट हम मारेंगे नहीं। वरना ये मतलब सिनेरियो पूरे, अगर हम एक हाइपोथेटिकली देखें तो ऐसा हो, डेफिनेटली हो सकता है। अफगानिस्तान तो इज कीन कि हमें कहीं से भी कुछ फंडिंग मिले और हम कहीं से भी कुछ करें। तो ये ईरान इसराइल की वॉर एक इनडायरेक्ट यूएस चाइना वॉर भी है। चाइना तो चुपचाप बैठा है इसीलिए कि आप मारो, हमारा तो रास्ता बढ़ेगा। है ना? ईरान जो थोड़ा बहुत डिस्टेंस में था कि हम कोने ईरान में। में, चाइना फिर और बिलियंस ईरान में इन्वेस्ट कर देगा।
यस डेफिनेटली। उसकी जो चेकबुक डिप्लोमेसी है वो उसके लिए इंस्टेबिलिटी बहुत सही चीज है। यस कहीं पे डेफिनेटली। भी इंस्टेबिलिटी होगी, चाइना लोन देने के लिए रेडी है। हाँ आप हमें, हाँ वो पैसे देंगे, आप हमें अपना पोर्ट दो, आप हमें हमारी सिटी दो। दैट्स डेफिनेटली व्हाट आई एम टॉकिंग कि ये एक इनडायरेक्ट यूएस चाइना वॉर है। यूएस दिखाना चाहता है कि वी आर द बेस्ट, वी आर द मोस्ट रिलायबल। जो भी दुनिया की परफेक्ट कंट्रीज हैं, हमें देखो, सपोर्ट अस, वी बैक यू। इट्स जस्ट लाइक दैट। अभी सीज फायर हो गई, अब वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है? ईरान रिटेलिएट करना चाहिए ईरान को, आई बिलीव, और वो शायद करेगा भी। आई शुडंट से हाँ, कि करना चाहिए, बट आई थिंक वो करेगा। ये करना भी चाहिए ना। तो इससे यूएस की इन्फ्लुएंस और बढ़ेगी ना मिडिल ईस्टर्न और साउथ, जो अभी जो पुअर नेशंस हैं या जो लीस्ट डेवलपिंग नेशंस हैं उनमें। सो ईरान शुड बी द टॉर्च बेरर कि हम अमेरिकन अब ये नहीं सहेंगे। आयतुल्ला पूरी फुल ब्लोन माइंड में लेके बैठा था कि इसराइल करेगी तो हम पूरी फुल ब्लोन वॉर पे आएंगे। तभी उसने अपनी सारी मिसाइल्स अनलीश कर दी। ऑल्दो उसने अभी तक सिर्फ बैलिस्टिक मिसाइल्स करी हैं, क्रूज मिसाइल्स नहीं करी हैं अपनी। बैलिस्टिक मिसाइल तो फिर भी आप इंटरसेप्ट कर सकते हो, लेकिन आप क्रूज मिसाइल नहीं कर सकते, क्योंकि क्रूज मिसाइल इतनी फास्ट होती है, उसका मोशन इतना बैलिस्टिक, उसका मोशन के हिसाब उसे इंटरसेप्ट ही नहीं कर पाते। आयरन डोम की भी कितनी कितनी एफिशिएंसी, 90%। तो 10% तो हाँ, हिट होंगी ना। अभी तो जो ईरानियन मिसाइल्स थी उनने आयरन डोम को भी ऐसे कर दिया ना, फेल कर दिया है। बिल्कुल, बिल्कुल करा है। और वे मतलब ईरानियन मिसाइल्स हाइपरसोनिक स्पीड से जा रही है, और आयरन डोम हाई सुपरसोनिक से जा रही है, और आयरन डोम तो हाइपरसोनिक है। तो ईरान इस मतभेद, इस कॉन्फ्लिक्ट से एज अ मिसाइल सुपर पावर पे निकल के आ रहा है कि वी हैव व्हाट इट नीड्स टू रिस्ट्रेन यू फ्रॉम टू वेयर यू आर। जो ईरान के अलग प्रोपागेंडाज और अलग प्रॉब्लम्स हैं वो सब असाइड हैं। जो उसके थियोक्रेटिक प्रॉब्लम्स हैं, ह्यूमैनिटेरियन प्रॉब्लम्स हैं, जो भी वहाँ हो रहे हैं वो सब अलग हैं। सीरिया के साथ उसका रिलेशनशिप्स क्या क्या है, वो सब, वो दैट्स अ डिफरेंट पार्ट। बट इसराइल ईरान के कॉन्फ्लिक्ट में जस्ट डिफेंस पर्सपेक्टिव से, एक जियो पॉलिटिक पर्सपेक्टिव से, ये दिस जस्ट लुक्स लाइक दैट कि ईरान जो है, इसराइल जो है वो यूएस की एक प्रॉक्सी है। हाँ भाई। आई थिंक हमें ये डिस्कशन यही कंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि टॉपिक्स लाइक दिस जो सालों सालों से चले आ रहे हैं, उनका डिस्कशन तब तक खत्म नहीं हो जब तक वन ऑफ द कंट्री विंस एंड डिस्प्लेज टू द वर्ल्ड की वी वन, वी हैड पावर, द फेट वाज इन आवर फेवर। एंड वी वेदर कैन नॉट यूएस, से विच साइड इज राइट एंड गलत कौन सी है, वी सही कैन नॉट कौन सी से। है। यस। कहते हैं ना, वी थ्री। sometimes the conflict is so long that you forgot which side is right or wrong, and the line between truth or wrong blurred between the longitude of the conflicts. हम एक डेफिनेटली। साइड नहीं बोल सकते एक साइड सही है या गलत है। डेफिनेटली। इतनी बड़ी कॉन्फ्लिक्ट है कि इसमें कहीं ना कहीं दोनों साइड की गलती, दोनों साइड सही, सब रहता है। Definitely. And I think that is one of the reason also कि India is not taking any sides. Apart from the interest that India has with both nations, and the fact that which is right, who's right and who's wrong, it has been a blur. The line has been blurred. So it's better not to take any side. And For what? India, stable Middle East is needed. Yes. its project, its IMAC project and its other Mhm. various projects। इंडिया को एक स्टेबल वर्ल्ड चाहिए, सिर्फ स्टेबल मिडल ईस्ट नहीं, क्योंकि इंडिया Yes. इज जस्ट डेवलपिंग, इट्स एक्सपेंडिंग इट्स ट्रेड। सो वी नीड अ स्टेबल वर्ल्ड ऑर्डर। Yes. Definitely, we need a. लेट्स होप फॉर द बेस्ट। Let's hope for the best. I really hope that Russia don't get into this. If Russia wasn't involved in Ukraine war, it would have entered the war. बट बिकॉज उसकी एनर्जीज पहले से कहीं एंगेज्ड हैं तो इसलिए वो नहीं हुआ। बट इनडायरेक्टली वो कहीं ना कहीं से तो कर ही रहा होगा, डेफिनेटली। बट अंटिल वन हाँ, पार्टी पर ये विंस। कॉन्फ्लिक्ट अगर एक्सटेंड होगी तो फिर रशिया आएगा, क्योंकि रशिया रशिया को बहुत रिसोर्सेस है। वो एक साथ दो फ्रंट पे काम कर सकता है। यस डेफिनेटली। चाइना के पास भी बहुत रिसोर्सेज हैं,
चाइना भी बहुत रिसोर्सेज, रशिया एंड चाइना, टू तो कंट्रीज। चाइना डायरेक्ट इन्फ्लुएंस नहीं करता ना, चाइना हमेशा पीछे खड़ा रहता है। पीछे चाइना खड़े, कभी भी आगे आके कुछ पीछे नहीं करता है। पीछे खड़े होने के लिए भी तो कोई ऐसा चाहिए ना, कि जो जिसकी खूब बॉडी तगड़ी हो, जो बिल्कुल अगर जरूरत पड़ी तो लड़ने के लिए दैट वुड बी अ परफेक्ट कैंडिडेट। जैसे एलाइज के पास था यूएस वर्ल्ड वॉर में, फुल्ली लोडेड विद वेपन्स, फुल्ली लोडेड विद मनी, फुल ऑफ न्यू एनर्जी, जो वॉर से वॉर वेरी नहीं है। तो चाइना इज, जो ये ईरान, रशिया, नॉर्थ कोरिया वाला फ्रंट है अगेंस्ट यूएस, उसका जो नॉन वॉर वेरी जो पार्टनर है दैट इज चाइना। फुल्ली लोडेड, नॉट फुल्ली टेक्नोलॉजिकली लोडेड, वो है। इसमें पाकिस्तान भी न्यूट्रल रहेगा, बिकॉज चाइन उसके पाकिस्तान के जितने यूएस के साथ टाइज है उतने चाइना के साथ भी टाइज हैं। यहाँ उसको यूएस गोली देगा, वहां से चाइना गोली देगा। पाकिस्तान को तो जो पैसा देगा वो उस साइड से बोलेगा। हाँ, दैट इज ऑल्सो ट्रू। पर जब तक कोई एक पार्टी जीत नहीं जाती, वी कैन नॉट से कि ये दिस इज द पावरफुल वन। वी कैन नॉट से कौन राइट रॉन्ग है, बट वी कैन से डेफिनेटली कि जो जीतेगा दिस इज द पावरफुल वन। जैसे वर्ल्ड वॉर टू में निकला था, टू पावर्स। अब वैसे तो अभी लड़ाई कब खत्म होएगी, कौन हमें कब पता चलेगा, कौन कौन सी डिसाइसिव वॉर ऐसी होएगी, या फिर कौन सा डिसाइसिव ऐसा इवेंट होगा जिससे हमें पता चलेगा विच पावर इज द सुपर पावर। क्योंकि अभी तो मल्टीपोलर वर्ल्ड हो चुका है, देयर इज नो वन पावर। यूएस इज ट्राइंग टू बिकम द यूनी पावर अगेन, बट हर जगह से पावर्स उठ रही हैं। इंडिया इज ट्राइंग टू बिकम अ पावर, चाइना इज ऑलरेडी इकोनॉमिक पावर आई बिलीव, रशिया इज अ पावर, नॉट सुपर पावर, इट इज डेफिनेटली अ पावर। आज के लिए आई बिलीव हमने बहुत ज़्यादा ही इस पे डिस्कशन कर लिया है, एंड आई होप हमारे व्यूअर्स को डिस्कशन पसंद आएगा, एंड वी विल बी बैक विद अनदर डिस्कशन। You can also drop down in comments on which topic you would like to uh, you would like us to discuss, and we are open to discussions on any hot topics, whether it be related to any Supreme Court judgment or geopolitics, or any fun topic as well, that is AI. I think AI is a fun topic, that how is AI influencing. We are open to that, and stay tuned for further more discussions just like this. It was very nice to have you, Ritich, on the panel of discussion. Your Thank you insights, very much. your insights. Everyone like, comment, and subscribe. Yeah, like, comment, and subscribe. It was our first time, so we hope you like it.